Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Today we start chapter number first of statistics, correlation. So, statistical analysis means whenever we conduct statistical investigation, then the data is classified into or analysis investigation will be classified into three broad categories. These are univariate analysis, bivariate analysis and multivariate analysis. Univariate analysis means when the analysis deals only with single variable, and bivariate means analysis of two variables only. Multivariate means when the variables are more than two. So this is called multivariate analysis. So all the topics discussed in this book preceding chapters relate to univariate analysis, but correlation and regression come under the multivariate, bivariate analysis as well as multivariate analysis. So mean, median and mode, the chapters that have you covered, deals with only one variable, that is univariate analysis. But the regression, correlation, these are multivariate or bivariate analysis. So what is correlation? Co means relation is a means find out any effect or changes between two variables, and correlation means simultaneously checking the relationship between the two or more variables. So it is a statistical technique which helps to study the nature, extent and significance of relationship between two or more than two variables. So it is a measure or association between two or more than two variables. Definition is an analysis of the covariation of two or more variables is usually called correlation. Types of correlation are, जैसे x और y दो वेरिएबल्स दिए गए हैं आपको x y, तो इनमें हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, दैट इज़ कोरिलेशन. मीन में आपको सिर्फ x की वैल्यू दी जाती थी. x मीन्स मार्क्स दिए जाते थे, वेट, हाइट, तो ये ओनली x का डाटा हम सॉल्व करते थे. लेकिन कोरिलेशन में दो सीरीज होंगी, x की और y की. a और b भी हो सकती हैं, p q में दो होंगे आपके पास वेरिएबल्स. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आर ऑन द बेसिस ऑफ 5 हैं ये. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है मीन्स उसमें इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो सामने वाले में भी डिक्रीजन आता है. सो दिस इज़ द केस ऑफ प्राइस एंड सप्लाई. अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी. नेगेटिव मीन्स when one variable increases other decreases. This is an example of price and demand. When price rises demand decreases, and when price decreases demand rises. On the basis of number of variables. सेकंड है ये, सेकंड इन्होंने टाइप्स बताई है. सिंपल, सिंपल मीन्स हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. So if we study the relationship between output and labor only, this is a simple correlation. पार्शियल मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल्स है, मानो a b c, ये तीन है, लेकिन हमने क्या लिया, सिर्फ a और b में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया. c को क्या रख लिया, कांस्टेंट, उसको हमने इग्नोर किया या कांस्टेंट रख लिया, दैट वाइज इससे पार्शियलिटी हो रही है. तो ये a एंड b से जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेशन, दिस इज़ अ पार्शियल रिलेशन. नेक्स्ट इज मल्टीपल. जैसे हमारे पास तीन है वेरिएबल्स a b c, पहले a का b के साथ रिलेशन, b का c के साथ, देन a का c के साथ. दिस इज़ अ मल्टीपल कोरिलेशन. थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज इन वेरिएबल्स. ये लीनियर है और नॉन लीनियर. लीनियर मीन्स एक रेशो सेट हो रही है और वो सेम है. रेशो देखो, जैसे इन्होंने एग्जांपल ली x और y की, यहाँ पे x में कितना चेंज आ रहा है, 1 का, और इसमें 2. इधर क्या हो रहा है, 1 2, इसमें चेंज आ रहा है 1 2, तो रेशो क्या बन रही है, 1:2. सभी केसेस में रेशो क्या बन रही है, 1:2. दैट इज़ अ लीनियर कोरिलेशन. अब अगर ये रेशो ना बने, दैट इज़ अ नॉन लीनियर. देखो एक्स वाई में यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3, 1 1, यहाँ पे 1:3 बनी रेशो, यहाँ पे 1:1, देन 1 एंड 5, 1:5. तो ये क्या रेशो चेंज आ रही है, सभी में सेम नहीं आ रही. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ नॉन लीनियर कोरिलेशन.
लॉजिकल एंड इलॉजिकल। लॉजिकल मीन्स अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएबल्स में तो वो लॉजिक हो, जैसे कि प्राइस और डिमांड का, प्राइस सप्लाई का, इनकम कंजप्शन का, ये लॉजिकल है। इलॉजिकल क्या होते हैं, जैसे हम रेनफॉल का बर्थ रेट के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, इनकम का नंबर ऑफ एक्सीडेंट के साथ, तो ये क्या है, इलॉजिकल। फिफ्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये आप टेबल में से करोगे। डिग्रीज हमारे पास हैं परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड एब्सेंस। परफेक्ट क्या होती है, जब कोरिलेशन का आंसर +1 और -1 के बिटवीन रेंज करता है, ये परफेक्ट है। इम्परफेक्ट में वेरी हाई। इफ़ अ कोरिलेशन इज पॉजिटिव में 0.9 से पॉजिटिव +1 और यहाँ पे -0.9 से -1 में रेंज करेगा। फेयरली हाई में ये प्लस माइनस आपने देख लेना, नेगेटिव में माइनस लग जाना, पॉजिटिव में प्लस। 0.75 से 9, मॉडरेट में 0.5 से 0.75, लो में 0.25 से 0.5 और वेरी लो में 0 से 25। एब्सेंस मीन्स अगर कोई कोरिलेशन नहीं है तो क्या कहेंगे, आंसर इज 0। कोरिलेशन और उनके कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट इज कोरिलेशन में बी ड्यू टू प्योर चांस। प्योर चांस अगर लॉजिक है प्रॉपर तब हम कहेंगे कि इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो रिलेशन या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जैसे प्राइस सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड। वेरिएबल्स में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम कॉमन वैल्यू, ये कुछ कॉमन वैल्यू से अफेक्ट होने चाहिए। जैसे डिमांड शुगर की और डिमांड क्लॉथ्स की है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन है ड्यू टू द बोथ डिपेंड ऑन कंज्यूमर इनकम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करती हैं। सिग्निफिकेंस, अब इम्पॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन की, ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं वेरिएबल्स में। नेचर ऑफ कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताते हैं। मेजरमेंट बताते हैं कि कितनी डिग्री का है, जैसे मॉडरेट, वेरी हाई, फेयरली हाई। ये हैव्स टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप। रिग्रेशन एनालिसिस में ये हेल्पफुल करते हैं। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन रिसर्च एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। एम्पिरिकल क्या होती है, व्हेन इफ वन ऑब्जर्व्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इट मस्ट बी वेरीफाइड। जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, ये आपने पढ़ा है +1 में। एम्पिरिकल मीन्स व्हेन द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ वांट्स टू वेरीफाई द आंसर्स, दिस इज एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज अ मेन टॉपिक, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन और मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास 2 मेथड्स हैं कोरिलेशन फाइंड आउट करने के, नॉन मैथमेटिकल मेथड्स और मैथमेटिकल मेथड्स। नॉन मैथमेटिकल में आता है स्कैटर डायग्राम और इसमें आता है कार्ल पेयर्सन और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। स्कैटर डायग्राम है, उसकी आपको टाइप्स दी गई हैं, ये देखो। परफेक्ट पॉजिटिव, देखो अगर आपको पॉजिटिव कोरिलेशन बोला है तो आपकी जो लाइन है वो ऐसे जानी है, ठीक है। परफेक्ट मीन्स जो डॉट्स आएंगे वो बिल्कुल लाइन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, हमारी स्लोप डाउनवर्ड जाएगी, और परफेक्ट है तो स्लोप जहाँ पे है उसी पे ही डॉट्स आएंगे। हाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपवर्ड जानी है, लेकिन जो आंसर्स है यहाँ तो लाइन के ऊपर भी हो सकती है, बिल्कुल साथ साथ में। ये हम सॉल्व करेंगे आंसर्स तब आपको पता लगेगा। नेक्स्ट इज हाई नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स अब ये नहीं करना हमने, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड जाती है हमारी लाइन, पॉजिटिव में अपवर्ड जाती है, लेकिन जो आंसर है वो लाइन पे भी हो सकते हैं और लाइन के बिल्कुल साथ साथ में। लो पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव में लाइन अपवर्ड जानी है, लेकिन जो आंसर्स पॉइंट्स हैं वो थोड़े दूर हो गए हैं पॉइंट से। लो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव में, लेकिन जो डॉट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दूर हैं, इतने भी दूर नहीं लेकिन परफेक्ट से कम है। नो कोरिलेशन मीन्स कोई भी ना नेगेटिव लाइन बन रही है ना ही पॉजिटिव लाइन। तो देखो कैसे आपने ये लाइंस बनानी है, ऐसे आपको एक एग्जांपल दी होगी। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस दिया गया है और डिमांड दी गई है। जो प्राइस है, चाहे यहाँ पे एक्स दिया है या वाई दिया है, तो जो एक्स है ये वाली आपने यहाँ पे लिखनी है ओ वाई एक्सिस पे, और ये डिमांड है ये ओ एक्स एक्सिस पे लिखनी है। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपने। देखो प्राइस हमने यहाँ पे लिख ली है और डिमांड हमने यहाँ पे लिख ली है। अब जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, 90। 10 प्राइस, 80 डिमांड, हमने यहाँ पे डॉट्स लगा ली। तो डॉट्स क्या बनने हैं, स्ट्रेट लाइन बनने हैं। ये क्या है, नेगेटिव,
डाउनवर्ड जा रही है तो नेगेटिव लाइन है, तो आंसर में क्या लिख देंगे, सो देयर इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, आपने स्कैटर डायग्राम बनाना है, उसमें मार्क्स दिए गए हैं हाउस एग्जामिनेशन और फाइनल। हाउस एग्जामिनेशन जो है इन्होंने लिए हैं यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे या ओ वाई, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। सो यहाँ पे आपने बनाने हैं पॉइंट्स। जब हमारे पास 20 है तो हमारे पास हाउस एग्जामिनेशन फाइनल में कितने मार्क्स हैं 60, देन 30 और 50 यहाँ पे डॉट्स लगाए। तो डॉट्स से क्या बना, ये पॉइंट सेंटर में आ रहा था तो हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। तो इससे क्या बना, अगर लाइन सीधी ड्रॉ की है तो बाकी सारे लाइंस क्या हैं, उसके बिल्कुल डॉट्स आसपास आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव तो है, ऊपर अपवर्ड जा रही है मीन्स पॉजिटिव, लेकिन साथ साथ में आ रहे हैं तो ये क्या है, आंसर्स में लिखेंगे हाई पॉजिटिव। साथ साथ में डॉट्स आ रहे हैं मीन्स हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। बस ये आपने लर्न करना है कि अगर डॉट्स आप लगा रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है परफेक्ट पॉजिटिव, स्ट्रेट डाउनवर्ड जा रही है परफेक्ट नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन जा रही है लेकिन डॉट्स आसपास हैं तो ये हाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रही है लेकिन साथ में है डॉट्स हाई नेगेटिव, अपवर्ड जा रही है हमारी लाइन लेकिन जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए हैं, तो दैट इज़ लो पॉजिटिव एंड ये लो नेगेटिव है। और अगर कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही दैट इज़ नो कोरिलेशन। तो ऐसे आपने ये एक्सरसाइज 1.1 है ये सॉल्व करनी है। मेरिट्स दिए गए हैं स्कैटर डायग्राम के। सिंपल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम कॉस्ट और एफर्ट कम लगते हैं। नो इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम मीन्स हाई और लो वैल्यूज़ का कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल वैल्यूज़, एबनॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता लग जाती हैं और मिसिंग वैल्यू का भी पता लग जाता है। डीमेरिट्स आर लिमिटेड यूज़, नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल टेक्निक्स, not useful in case of multiple correlation and partial correlation, not suitable to large number of values and personal bias. So this is about first topic, scatter diagram.